కోల్కతాలో విపక్షాల ఐక్య ప్రదర్శనకు సర్వం సిద్ధమైంది. బీజేపీయేతర పార్టీలు హాజరు కాబోతున్న ఈ సమావేశం కూటమి సత్తా చాటనుంది. యునైటెడ్ ఇండియా బ్రిగేడ్ పేరిట తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమత నిర్వహిస్తున్న భారీ ర్యాలీకి దాదాపు 20 పార్టీల నాయకులు హాజరయ్యారు. A former minister was found dead in mysterious condition or circumstances. And those in power don't want a CBI inquiry, or CBI is now puppet in the hands of their masters. You have seen. As Honorable Prime Minister Devagowda is amongst us. We all know how democratically elected government is being tortured by those who seek power at any cost. This is a challenge before the entire Indian democratic ethos. The people in Delhi are dividing the country, especially Northeast. The Unplanned Citizen Amendment Bill and the framework agreement between Delhi and Naga people are an example of how political parties are dividing the country just like British rulers in the past. Let this brigade rally bring a new chapter in Indian political history. The wisdom of Swami Vivekananda, Ramakrishna Paramhans, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and Gurudev Rabindranath Tagore guide us in making India the strongest and largest democracy in India. Therefore, Mamata ji, I really appreciate you that you have organized this historic rally for all the organizations, regional parties. But I would like to request all the regional parties should be together, and in a common platform we should voice the voice of the people and save the democracy. We have to regularly meet, not only every interval this type of rally should be convened, so that a concrete decision should be made by us, so that we can replace. It should be the power of the people. Our high commands are the people, voters, leaders, not in center. Therefore, trend should be changed. Therefore, I would like to request you that this kind of historic movement should not allowed to be maintained all the time to come. I have come here to strengthen the hands of Mamata ji and all like-minded people, and also my colleagues. Thank you very much. Thanks a lot, Mr. Apang ji. Now I would request Mr. Laldoma ji from Mizoram, the Mizoram Zhuang Public Party, People's Party, the leader, opposition leader there, to address the gathering. Now you see the Northeastern, from Assam to Tripura to Manipur to Arunachal to Mizoram. All my friends are here. It's a great victory for this United India Alliance. First of all, greetings from Mizoram and Happy New Year to all of you. Today, we come from Mizoram to witness this historic event with a purpose. I repeat, we come with a purpose. As you know,
the whole region of Northeast India is burning like a wildfire due to a citizenship amendment bill which was passed by Lok Sabha recently. Due to this bill, the people of North India has been alienated from the rest of the country. And the feeling of belongingness to this country in the minds of the Northeast people is fading away. Let me tell the Prime Minister of India, let me give him a warning through this rally that if this bill is enacted, India will no longer be a suitable place for us to remain. Therefore, we come here with a purpose to see that a new government is formed at the center, a real secular government, so that this bill is either withdrawn or an exemption is given to the Northeast. Today, the religious minorities, the ethnic minorities, and the language minorities are not safe in the hands of these combined forces of BJP, RSS, and Bajrang Dal. They are rewriting the history of this great country in their own way. They are interfering with our personal lives. They are telling us what to eat and what not to eat. They are telling us they are interfering in our religious freedom. So, I have full faith and confidence that a leader who could transform the state of West Bengal within a short period of time will be able to transform the nation too. We are looking forward to see a new, real secular government at the center so that the people of Northeast are safely protected. Lastly, I appeal all the regional parties of Northeast to cut off, to break away from all kinds of connections with the BJP and join this great movement. Let us all unite together and fight against communalism. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Laldomaji. We appreciate your sentiments and sentiments of the Northeastern region. We do hope that our united efforts and the united leadership will take care for your concern, because we also oppose strongly the Citizenship Amendment Bill. Thank you so much. Now, अभी हम जयंत जी को, जो हमारा अजीत सिंह जी का बेटा है और हमारा यूपी का राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का नेता है, मैं जयंत को बोलने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। शत्रुघ्न जी बैठिए। मंचासीन उपस्थित सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं और सामने बंगाल के हर कोने से आए, गांव से, कस्बे से, शहर से आए इस जनता का अभिवादन करता हूं। यहां इतनी संख्या में आकर आपने हम सब का उत्साहवर्धन किया है, हमें ऊर्जा देने का काम किया। आदरणीय ममता जी ने जब निमंत्रण दिया था चौधरी अजीत सिंह जी को, हमें तो बताया था कि रैली होने जा रही है। मैं ममता दीदी को कहना चाहता हूं, ये रैली नहीं, हमारे यहां उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर भारत में इसे रैला कहते हैं। रैली नहीं है, रैला है। साधारण सभाओं में जनता आती है सुनने,
लीडर क्या कहेगा, क्या संदेश देगा। लेकिन ये सामान्य सभा नहीं है। मैं समझता हूं कि हम लोग यहां इस मंच पे आके क्या बोलते हैं ज्यादा महत्व नहीं है। देश की जनता देखना चाहती थी। मंच पे आप दृश्य देखिए, नजारा देखिए क्या है। पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, शायद 19-20 पार्टी के संगठन के लोग उपस्थित हैं। एक विद्वान ने मुझे बताया था बंगाल के बारे में, क्योंकि पूरा देश जानता है कि बंगाल का आदमी बुद्धिजीवी है। उन्होंने कहा बंगाल थिंक्स फर्स्ट एंड देन इंडिया थिंक्स। और ममता जी को बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आज आपने साबित कर दिया, आज आपने वो कर दिखाया जो बहुत कठिन था, बहुत दुर्लभ था। और आपके आशीर्वाद से हम लोग एक हैं, इस मंच पे इकट्ठा हुए हैं, एक आवाज में, एक स्वर में बोल रहे हैं। मैंने सुना था हार्दिक भाई ने बोला ना, नारा दिया, चोरों से निपटाना है, चोरों से छुटकारा दिलाना है। इस देश के लिए हम लोगों ने तय कर लिया है, अच्छे दिन लाने हैं तो मोदी जी को भगाना है। मैं ममता जी को कहना चाहता हूं, देश की निगाहें हैं आप पे हमेशा से रही हैं। जब आप मुख्यमंत्री नहीं भी थी तब भी देश जानता था कितने संघर्ष आपने किए। मां माटी मानुष का नारा देकर आप सत्ता पे आई, किसान की लड़ाई लड़के आप सत्ता पे आई, और बहुत खुशी होती है देख करके। बंगाल में जो हो रहा है पूरे देश को, हम सबको उससे सीखना चाहिए। यहां 96% जो किसान हैं वह छोटे और मझौले किसान हैं, जमीन नहीं है। उनको आवश्यकता है ऐसी सरकार की जो उनकी देखरेख करे, जो नजर रखे कि जो सरकारी योजना नीति है वह जमीन तक पहुंचनी चाहिए। और यह आपने कर दिखाया है। 7 गुना जो हमारी राज्य सरकार बंगाल की जो खर्च किया करती थी, जो व्यय करती थी कृषि क्षेत्र के लिए, 7 गुना बढ़ोतरी बंगाल ने करी है। और मोदी जी कहते हैं कि किसानों को कि 2022 तक इंतजार कीजिए, आय दुगनी कर दूंगा। मित्रों 2022 में होगी, कहते हैं ना, आपने सुना है कि नहीं? लेकिन बंगाल में मैं आंकड़े देख रहा था, ताज्जुब की बात है। 2010-11 में औसत यहां किसान की परिवार की आय थी 91,000 रुपए, और 2015-16 में वो बढ़ के 3 लाख तक पहुंचा दी है, 3 गुना कर चुके। बांग्ला फसल बीमा योजना यहां चलती है। मोदी जी कहते हैं हमने जो है पूरे देश के किसानों को सुरक्षा कवच दे दिया है। असलियत क्या है? बाजारीकरण हुआ है। असलियत यह है कि बिना किसान की अनुमति के उसके खाते से पैसे काटे जा रहे हैं, और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लुटाए जा रहे हैं खजाने से और आपके जेबों से। लेकिन ममता जी ने यहां योजना चलाई, उन्होंने कहा कि नहीं, किसान से नहीं लूंगी। यह होता है नेतृत्व। यहां जो प्रीमियम है बांग्ला फसल बीमा योजना, वह जो है राज्य सरकार दे रही है, गरीब किसानों से वो पैसा नहीं लिया जा रहा है। इस लूट को रोकने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पे यह होना चाहिए, और हम लोग तय करें कि जब सरकार बनाएंगे, अगली सरकार किसानों की होगी, मजदूर की होगी, गरीब की होगी, नौजवान की होगी। हम देश भर में ये कानून लाएंगे, नीति लाएंगे कि किसान की जेब से पैसा ना लिया जाए। मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो हो रहा है उस पर इतना ही कहूंगा। आपको विचार करना है कि नेता कैसा होना चाहिए, नेता की सोच क्या होनी चाहिए, नेता के काम कैसे होने चाहिए, यह आपको देखना है। बहुत मूल्य होते हैं, बहुत खूबियां होती हैं। मैं तो एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं, आप शायद सोचेंगे क्या कह रहा है। मैं ये कह रहा हूं, नेता जिद्दी भी होता है, नेता जिद्दी भी होता है। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के लिए जिद्दी थे, समझौता नहीं किया। ममता जी बंगाल के लिए, आपके लिए जिद्दी हैं, समझौता नहीं करती। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री हैं वह मोदी के लिए जिद्दी हैं।
वह मोदी के लिए जिद्दी हैं, आपके लिए जिद नहीं करते। उनकी एक जिद है, फ्रांस भी जाएंगे तो वो जिद पकड़ लेते हैं कि मेरे अपने लोगों को ठेका दो। उनका नाम लेके उनकी फौज में जुड़े हुए लोग गाय को बहाना बना के, हिंदू मुसलमान को बना के हत्या कर दे, दंगा कर दे, सारे जो है उनके अपराध माफ है, ये उनकी जिद है। लेकिन ये जिद बहुत खतरनाक होती है, ये जिद हमें बर्दाश्त नहीं है, देश के लोगों को बर्दाश्त नहीं। तो जिद्दी होना चाहिए। आप कहते हो 56 इंच की छाती है, जब छाती इतनी बड़ी होगी तो दिल भी तो बड़ा होना चाहिए। दिल क्यों नहीं दिखाते हो? अमर्त्य सेन ने कहा था कि देश का आदमी आर्गुमेंटेटिव है, बहस करने वाला है। हमारे यहाँ के लोग मंडियों में बैठे बैठे बहस करते हैं, खेत में बैठे बैठे बातचीत करते हैं, बाजार में जाके बहस करते हैं। ये हमारे देश का मिजाज है। हमारे यहाँ का आदमी नाराज बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन नाराज होने के बाद 2 मिनट नहीं लगाता, उसके दिल में गहराई में झांक कर देखोगे तो हमारे देश का सबसे गरीब आदमी भी बहुत बड़ा दिल रखता है, वह रो पड़ेगा। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं लगता, अगर आपका दिल है तो देश की जनता आवाम के आगे खड़ा होकर कह दीजिए, माफी मांग लीजिए कि नोटबंदी गलत फैसला था। यह होता है बड़ा दिल। ये कह दीजिए जीएसटी के लिए देश तैयार नहीं था। ये कह दीजिए फसल बीमा योजना में किसानों के अत्याचार हो रहा है, लूट हो रही है, मैं नहीं कर पाया जो करना चाहता था। शायद देश की जनता के दिल में नरमाई आ जाए, लेकिन हम लोग जानते हैं मोदी जी करने वाले नहीं है, माफी मांगने वाले नहीं है, गलती को मानने वाले नहीं है। ये उनकी जिद है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं देश की जनता से, आप मन बनाइए। हम लोगों ने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। यूपी में 80 सीट आती हैं, 80 में से 73 भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल जीत गए थे। पिछले चुनाव में ऐसी आंधी भूचाल आई और मुझे मेरे लोग कहते थे कि भाई हम तो बहुत लोगों से हारे हैं, तुम तो हेमा मालिनी से हार गए। मैं भी हारा था चुनाव, तो ऐसी हवा थी। लेकिन हम लोगों ने साथ मिलकर काम किया, विपक्ष की पार्टियों ने शुरुआत कर दी। हाल के दिनों में 73 से गिनती गिरा दी, 3 सीट हराकर भेज दिया और 70 पे आ चुके हैं। और आप देख लीजिए मंच पे लोग बैठे हैं। हमने तय कर लिया है कि जो उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे, जो आप चाहते हो, जो बंगाल की जनता चाहती है, जो देश की जनता चाहती है, हाथ मिलाकर, तालमेल बनाकर, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के तंबू को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और नौजवानों को करना होगा। देश के कवि, राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जी के शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि चोटे खाकर बिफरो कुछ अधिक तनो रहे, धधको स्फुलिंग में बड़ अंगार बनो रहे। तो हमें संघर्ष करने की जरूरत। मैं आखिर में कलकत्ता की, बंगाल की जनता को इतने प्यार से आपने हमें बुलाया और बातों को सुना, मैं कहना चाहता हूं, अपने आखिर में इस बात को कह के खत्म करूंगा, अमी अपना के भालोबासी। धन्यवाद। जयंत जी को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सारे किसान का बात किया है, हम लोग भी किसान के लिए, हमारा इधर में ट्रिपल इनकम हो गया है। मोदी जी ने कहा है डबल इनकम करेंगे 2022 में, लेकिन हमारा इधर में ट्रिपल इनकम पहले ही हो चुका है। और हमारा इधर में किसान के लिए हम कोई खजाना भी नहीं लेते हैं, पूरा फ्री है। उसका प्रीमियम भी हम दे देते हैं, उसको भी हम इंश्योरेंस भी कर दिया है, उसको लिए हम 5,000 रुपया देता भी है महीना में, बहुत सारे कर दिया। मैंने अभी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा एक बलिष्ठ नेता जसवंत सिन्हा जी ने, जिन्होंने अटल जी बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाला, आज देश में क्या हालचाल है कि उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया और अभी आम जनता का लिए काम करते हैं। मैं जसवंत सिन्हा जी को बताएंगे, आपका 2-4 बात आप कहेंगे तो हम लोग आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ममता जी। मंच पर उपस्थित यूनाइटेड इंडिया का लीडरशिप और हमारे सामने असंख्य संख्या में यहाँ उपस्थित यूनाइटेड इंडिया के लोग, मैं ममता जी का बहुत आभारी हूँ
कि उन्होंने आज के इस रैली में या रैला में मुझे भी आमंत्रित किया और 2 शब्द कहने का मौका दिया। हम सब यहां पर क्यों इकट्ठे हैं? ये देश के इतने बड़े बड़े नेताओं को जो आज आप मंच पर देख रहे हैं, वो सब यहां पर इकट्ठे क्यों आए हैं? हालांकि मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी आज की इस रैली के बाद। वो ये कहेंगे कि हम सब यहां इकट्ठे हुए एक आदमी को हटाने के लिए, जो आज देश का प्रधानमंत्री है, उसको हटाने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति का ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है एक सोच का, एक विचारधारा की, और हम उस सोच और उस विचारधारा के विरोध में आज यहां पर इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 56 महीनों में जो कुछ हुआ है इस देश में, उससे सबसे बड़ा खतरा जो पैदा हुआ है वो हुआ है देश के प्रजातंत्र के लिए, देश की लोकशाही के लिए। आज कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है इस देश में जिसको कि इन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ी हो। और इसलिए देश में प्रजातंत्र की, लोकशाही की रक्षा करने के लिए हम सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे सामने मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दे मुद्दा है, मुद्दे मुद्दा है। और हम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम मोदी को मुद्दा बनाएं, और मैं अब सब लोगों से आग्रह करूंगा कि हम मुद्दों को मुद्दा बनाएं। देश में लोकशाही खतरे में है, देश की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है। ये पहली सरकार है भारत देश में स्वतंत्रता के बाद जो आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करती है। हम सब लोग सरकार में रहे, कभी अच्छे आंकड़े आए, कभी उतने अच्छे आंकड़े नहीं आए, लेकिन कभी हम लोगों ने नहीं कहा कि आंकड़ों को सजा के, बढ़ा के, चढ़ा के पेश करो। ये पहली सरकार है जो आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है और आपको भुलावे में रखने का प्रयास कर रही है। आप सब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और आप जानते हैं कि जमीन पर क्या स्थिति है। उसके अलावा समाज को तोड़ने का, देश को छिन्न भिन्न करने का इनका इरादा है। आप जानते हैं कि आप इस सरकार का अगर विरोध करते हैं तो तुरंत ये कहा जाता है कि आप देशद्रोही हैं। जैसे सरकार की चापलूसी करना देश प्रेम है और उसका विरोध करना देशद्रोह है। यहां फारूक अब्दुल्ला साहब बैठे हैं। मैं कई बार कश्मीर गया, उनसे बातचीत हुई कश्मीर के बारे में, और हमने क्या कहा? हमने कहा कि कश्मीर के बारे में, कश्मीर का जो मुद्दा है उसका समाधान बंदूक की गोली से नहीं होगा, उसका समाधान प्यार की बोली से होगा। प्यार के 2 शब्द बोलो और देखो उसका कितना असर पड़ता है। तो पहले तो हमें देशद्रोही कहा गया और उसके बाद ये कहा गया कि मैं पाकिस्तान का एजेंट हूं। आप बताइए, अगर प्यार की बोली की बात करना पाकिस्तान का एजेंसी है, एजेंट है, तो फिर क्या बचा इस देश में?
मैंने कहा आपसे कि देश आज एक बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ा है और मैं यहां मंच पर जितने हमारे ताकतवर नेता बैठे हैं उनसे एक ही आग्रह करना चाहूंगा। मैं तो खुद अब फकीरी की ओर हूं, मुझे अब अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए, केवल एक उद्देश्य है, एक लड़ाई बाकी है और वो लड़ाई है इस सरकार को जिसकी सोच इतनी गलत है उसको हम लोग सरकार से बाहर करें। और इसके लिए आवश्यक है आज के दिन कि मंच पर जितने हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं वो ये सुनिश्चित करें, तय करें कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने हमारी तरफ से एक उम्मीदवार खड़ा होगा, एक उम्मीदवार। और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा पूरे देश में। ये मैं उनसे विशेष आग्रह करना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसको तरजीह देंगे और हम आने वाले दिनों में एकजुट होकर, जैसे आज यहाँ मंच पर हैं, हम एकजुट होकर ये आने वाला चुनाव लड़ेंगे और इस सरकार को बाहर करेंगे। वो नारा उन्होंने दिया था, सबका साथ सबका विकास। आज 5 साल के बाद हम देख रहे हैं सबका साथ तो उन्होंने लिया लेकिन विकास के बदले उन्होंने सबका नाश किया और इसलिए देश को बचाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।